Ankush, Mohammed. Sir, derive an expression for the kinetic energy of a body rotating Derive an expression for the kinetic energy of a body rotating with uniform angular velocity, right? Or we need to prove that kinetic energy which is equal to half I omega square. ये था क्वेश्चन. Yes, sir. ओके. एक डायग्राम दिया था मैंने वहां पे इस तरीके से, याद है? यस सर, डायग्राम के साथ आपने पहला दो स्टेटमेंट दिया. कुछ पैराग्राफ के स्टेटमेंट दिए हैं. M1 R1 V1 M2 V2 R2. Here we are having a point M3 R3 V3 Mn Rn Vn. Here we are having a point O. That is our Z dash. यही था. यस सर. ओके. दो पॉइंट्स कौन से थे? दो पॉइंट्स कौन Consider से a थे? rigid body rotating with constant angular velocity. अंकुश, मोहम्मद, आवाज बहुत ही लैग हो रही है आपकी. अंकुश, अंकुश, ओमकार. Yes, sir. दो पॉइंट थे, कौन से? Consider rigid body rotating with constant angular velocity omega along the z dash axis passing through the point O. As shown in the figure. Second, Let the body consist of n numbers of masses m1, m2, m3 mn situated at the distance r1, r2, r3 rn respectively from the axis of rotation. गुड. क्या ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर थे क्या? यस सर. Yes, sir. गाइस, मैं वापस स्टार्टिंग से बता देता हूँ, सब लोग एक बार जरा ध्यान से सुन लेना. Consider a rigid body is rotating with constant angular velocity omega about an axis z dash passing through the point O as shown in the figure. Second, let the body consist of n particles of masses m1, m2, m3, so on mn situated at the distance r1, r2, r3, so on rn respectively from the axis of rotation. अब गाइस यहाँ पे लीनियर वेलोसिटीज दिखाई दे रही है आप लोगों को v1, v2, v3, vn. अच्छा, डायग्राम सबने बनाया था ना? यस और नो? Yes, sir. तो डायग्राम रब कर दो, चलेगा सबको? Yes, sir. Okay. Guys, here we are having a linear velocity of particle of masses. So write down next point. Linear velocity of particle of masses are given by linear velocity of particle of masses are given by लिखे सबने? Linear velocity of particle of masses are given by वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग क्या था?
torque is equal to inertia alpha. No, I said linear velocity. मोहम्मद, v इज इक्वल टू क्या था इन सर्कुलर मोशन? मैंने नोट में दिया था आप लोगों को। v Sir, इज R इक्वल omega. यस आर ओमेगा। समझे? समझ में आया सबको? Yes, तो sir. अगर मैं यहाँ पे v1 पुट करूंगा तो ये r1 होगा, ओमेगा शुड बी अ कांस्टेंट। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। v3 is equal to r3 omega dot dot vn is equal to rn omega। समझे ये पॉइंट? Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर जी। लिखे ये done everyone? Yes, sir. Okay, write down in next line. Kinetic energy of a particle of mass m1, kinetic energy of particle of mass m1 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? half mv square. Square. ओके, रिपीट तो काइनेटिक kinetic energy of particle of mass m1, kinetic energy of particle of mass m1, kinetic energy का फॉर्मूला क्या है अंकुश? सर हाफ mv स्क्वायर। राइट, सो kinetic energy half m1 v1 स्क्वायर। राइट, यस ये सर। फॉर्मूला है। v1 क्या मिला हमें? R1 omega. r1 ओमेगा। सो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही होगा? यस और नो? यस सर। सिमिलरली अब गाइस एक आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है, बाकी सब आपको डायरेक्ट लिख देना है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ये 1 के लिए था, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2, तो यहाँ पर हुआ हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझे? सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी 3 इज इक्वल टू हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसके नीचे गाइस सो ऑन। अच्छा, ऊपर का रब कर दूं चलेगा? आप लोगों ने ये ऊपर के लिखे हैं फॉर्मूलाज वेलोसिटीज के? यस सर। यस सर। तो गाइस यहाँ पे नीचे डॉट डॉट पुट करने के बाद सो ऑन का पॉइंट डालोगे और ऊपर इक्वेशन लिखोगे। मतलब आप लोग नीचे कंटिन्यूसली लिखते चले जाना। काइनेटिक एनर्जी फॉर n पार्टिकल इक्वेशन विल बिकम अ हाफ mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सुनो गाइस, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। लिख लो, लिखो फटाफट यहाँ तक।
डन सर। डन ऑल हुआ सबका? ओके ओके। अब गाइस नेक्स्ट लाइन में लिखो, total kinetic energy of the rotating body is given by, total kinetic energy of the rotating body is given by, total kinetic energy of the rotating body is given by, total kinetic energy find out करना है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे सर। ऐड कर देंगे। so total kinetic energy is equal to kinetic energy 1 plus kinetic energy 2 फिर इसमें समेशन या कुछ यूज नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट किए तो सबको ऐड करके काम करेंगे, और जहां पर n नंबर होगा वहां पे डायरेक्टली समेशन यूज कर लेंगे। डोंट वरी, मैं बताऊंगा कौन सी जगह यूज करना है। ओके सर। आप लोग कंटिन्यूस लाइन में लिखोगे, दैट इज आवर काइनेटिक एनर्जी फॉर n पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो भी इक्वेशंस आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किए हुए हैं सबको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, दैट इक्वेशन विल बिकम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1 का क्या होगा? हाफ mv1 स्क्वायर। v1 अभी हम लोगों ने कुछ R1 ढूंढा हुआ ओमेगा है। स्क्वायर, हाफ यस, m1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझे? कॉमन क्या हो सकता है यहाँ पे? ओमेगा। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आप लोगों को? खाली ओमेगा कॉमन होगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर। हाफ ओमेगा। सर हाफ हाफ ओमेगा राइट। so keep that half common and here will remain only m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus mn rn square। in that case guys omega square get common, हाँ ओमेगा स्क्वायर बाहर है, जो ओमेगा स्क्वायर है वो ब्रैकेट के क्या है, बाहर है। सुना आप लोगों ने? mn rn स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर है। आफ्टर दैट गाइस if we're having a n numbers of equations, at that time we'll use the summation sign, half summation I is equal to 1 to n mi ri square into omega square। is that clear all? अभिषेक यस शुक्ला सर, दिस इज क्लियर है। क्लियर है? जी सर। तो गाइस अभी ये यहाँ तक लिखो, सब लोग फटाफट लिखो।
Done, sir. लेट एवरीवन कंप्लीट। और जब तक हो गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लो। Sir, done. Done, sir. Done. Let me know what do you mean by the moment of inertia. Let me know, guys. What do you mean by the moment of inertia? So the moment of inertia of a rigid body is the sum of the product of the masses multiplied by the squared of their respective distances from the axis of rotation. V square. Sir, m into r square, sir. हाँ, it's not V square. सर Basically, मैंने v the स्क्वायर नहीं बोला सर. okay. इतना याद रखना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है which is work on a curve path to restrict the motion of a particle where it should be moving on that curve path. अब एग्जैक्टली क्या इसका काम था कि ये मासेस पे वर्क करते हैं, याद रखना, जहां पे इनर्शिया का बात आया वहां पे मास की बात आ जाती है. सो दैट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब यहाँ पर जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट किया था, MI/RI स्क्वायर, कुछ फाइंड आउट किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? यस सर, फाइंड किया था सर. Summation of तो वो क्या फॉर्मूला था वो? समेशन i is equal to 1 to n mi ri square. ओके, तो ये जो समेशन i is equal to 1 to n है, MI/RI स्क्वायर की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? I. I. So that kinetic energy of rotating body is equal to half I omega square. Yes or no? यस सर. याद रखना, ये यहाँ तक इसको प्रूव करना होता है, और लेकिन इसके नीचे आप लोग लिख लेना, therefore moment of inertia I is equal to summation I is equal to 1 to n. एक सेकंड में लिख देता हूँ. ऊपर वाला पार्ट आप लोगों ने लिखा है क्या? ऊपर वाला पार्ट लिखा है क्या? Yes. गाइस देखो, I को सब्स्टिट्यूट करने के पहले वहां पर शो जरूर करना कि ये I आया कहाँ से है और I का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहना चाहिए कि सामने वाले ने कॉपी नहीं किया है, समझ के लिखा है. तो कोई भी चीज अब जब डायरेक्ट यूज करते हो तो वहां पे इस तरीके से लिख दिया करो. Therefore I is equal to summation I is equal to 1 to n mi ri स्क्वायर. ओके, ये हमेशा साइड में आपको लिख के रख देना जब भी कोई भी नई टर्म्स को आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो. इज दैट क्लियर ऑल? Yes. ओके, लिख लो.
Done all? Yes, sir. Okay. Derivation पूरा समझ में आया? Derivation clear Yes, हुआ sir. सबको? Yes or no? Yes, sir. ओके अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूं चलेगा? देखो एग्जाम में अगर आप Yes, लोगों sir. को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने बोले तो आपको बस यहीं तक फाइंड आउट करना है, इससे ज्यादा फाइंड आउट नहीं करना है। लेकिन गाइस कुछ ऐसे भी फॉर्मेट्स हैं जो आप लोगों को नीट सीईटी जेईई में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो वो फॉर्मेट कैसे इनसे लिंक होता है उसको मैं शो करने जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो डेरिवेशन था यहीं तक था। इज दैट क्लियर ऑल? समझे सब लोगों ने? Yes, sir. अब गाइस इसी डेरिवेशन के क्वेश्चन में कभी कभी कुछ और भी टर्म ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वी नीड टू शो, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, टू शो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to square of the frequency। हमें ये प्रूव करना है from the formula kinetic energy So directly proportional to n square, which is what? Directly proportional to n square। n का मतलब फ्रीक्वेंसी। okay, sir. अभी ओके ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला हुआ था, इस इक्वेशन से हम लोगों को प्रूव करना है। सिंस वी हैड द इक्वेशन kinetic energy is equal to half I omega square, now we are able to replace that omega with frequency। so can I know that formula? 2 pi n. राइट नोट करके लिखे हो या नहीं? लिखा है सर। बट n is equal omega is equal to 2 pi n, so we'll substitute over there and that kinetic energy will become a half I 4 pi square n square। in that case 2 4 get cancelled and here we get the equation 2 I pi square n square, it's our kinetic energy formula। अब यहाँ पे 2 I pi square को अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो दैट इक्वेशन kinetic energy is directly proportional to n square। मतलब हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से मैच होता है, मतलब दैट काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज प्रूव्ड ओवर हियर। ये समझ में आया कैसे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं? Yes, sir. लिख लो। ये कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो पोर्शन है टू शो द काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये कभी कभी आपके डेरिवेशन के साथ में ही ऐड कर देते हैं। तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो प्रूव करना ही होगा, उसके साथ में ये भी प्रूव करना होगा। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट कि ये क्या पूछ लिया यहाँ पर। ठीक है।
डन ऑल? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? डेरिवेशन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर ये अब सर guys, काइनेटिक एनर्जी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी का सर एक बार शॉर्ट रिवीजन करा दो ना। ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है अभिषेक। हाँ सर समझ में आ रहा है सर, फिर भी एक बार आप बता दो ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्म, हाँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को किससे रिप्लेस किया है? सर 2 पाई एन। क्यों? सर ओमेगा का फॉर्मूला है वो, आपने बताया था, नोट करा के दिया था। क्यों रिप्लेस करना है? फ्रीक्वेंसी से ही क्यों रिप्लेस करना है? मैंने तो और भी फॉर्मूलाज दिए हैं ना ओमेगा के। सर फ्रीक्वेंसी से वो है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करना है ना। क्योंकि इसके लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी से प्रूव करना है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। इज दैट क्लियर? यस सर। If we require the time period, suppose that kinetic energy which is inversely proportional to the square of the time period, तो हम लोग ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी से रिप्लेस करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अभी यहाँ पर तो पूरा, अगर हम लोगों ने इक्वेशन यूज कर लिया 2 पाई एन, तो हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन को छोड़ के बाकी सारे टर्म को कांस्टेंट कर देंगे। ओके सर। तो यहाँ पर ऐसा क्या टफ है? सर कुछ नहीं, समझ गया। समझे? डिपेंड करता Yes, है, वो sir. अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। फ्लक्चुएट करेंगे तो उस हिसाब से आपको इक्वेशन लेना है और प्रूव करना है। अगर फ्रीक्वेंसी की जगह पे अगर टाइम पीरियड प्रूव करना होता तो बोलते प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन टी यूज कर लेते हैं। इज दैट क्लियर ऑल? समझे? Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या जानते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? सर आई अल्फा। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई इज इक्वल टू अभिषेक, एम आर। तू आई इज इक्वल पढ़ टू एम नहीं आर। रहा है? mr square sir. I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब गाइस यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखना। रेडियस हमेशा क्या होता है? मान स्पीकर। Constant. रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है, ये छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा सर्कल ले लूं, तो इसके सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? Radius. रेडियस। ओके, अब अगर मैं एक बड़ा सा सर्कल ले लूं और वापस यहाँ पे सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस बनाऊं, अब क्या बोलेंगे इस एक्सिस को? Radius. इसे अगेन रेडियस। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने स्पेसिफाई किया क्या कि कहीं पे स्मॉल है, कहीं पे ग्रेटर है? क्या ये स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया क्या? नो No, सर। sir. लेकिन अब ये स्पेसिफिकेशन नहीं करने की वजह से फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क पड़ता है वो जरा मेजर करो। अब याद रखना, रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं होता। अब गैस जरा ध्यान देना, इनर्शिया का काम क्या है? इनर्शिया का काम क्या था? मूविंग बॉडी को रेस्ट पर लाना। करो. बॉडी को रेस्ट पे लेकर आने का, ठीक है? तो अब गाइस यहाँ पे हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर, उसमें जो रेडियस था वो कांस्टेंट था। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा पेंडुलम है जिसका जो स्प्रिंग है वो सिर्फ 1 मीटर का है और नीचे ½ kg का मैंने बॉब यूज किया है। कितने केजी का? हाफ केजी। Half kg. ½ kg का मैंने बॉब यूज किया है। तो अब गाइज एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलीज करूं, जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये कुछ देर में रुकना शुरू करेगा। यस और नो? कुछ देर में अपने आप को डैम्प करेगा ये, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे मास हैवी है। तो क्या इमेजिन कर सकते हैं फॉर योर साइड कितना टाइम लगना चाहिए
एनी टाइम, कोई भी टाइम को गैस कर सकते हो। गेस एनी टाइम। 50 सेकेंड, अरे बहुत कम हो गया भाई। एटलीस्ट इट विल टेक अ 2 मिनट। कितना मिनट लेगा ये? 2 मिनट लेगा, क्योंकि वायर 1 मीटर का है। इट्स इमेजिनरी नंबर। हाँ, इससे कम या फिर इससे ज्यादा भी ले सकता है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए हैं कि 2 मिनट में ये जो पेंडुलम है ये रुक जाएगा। यस और नो? यस और Yes, नो sir. एवरीवन? अब इसी के कंपेयर में मैं वापस एक बड़ा सा पेंडुलम यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा पेंडुलम मैंने यूज किया, जिसका जो स्ट्रिंग है दैट स्ट्रिंग शुड बी 10 मीटर, और बॉब उतना ही है ½ kg का। बट ये जो स्ट्रिंग है दैट शुड बी 10 मीटर। समझ रहे हो? समझे आप लोगों ने? अब क्या लगता है कि वह ये जो हमारा पेंडुलम है, क्या ये जल्दी रुकेगा क्या? मास तो दोनों में सेम है। अभिषेक ध्यान से, मोहम्मद, अंकुश, ओमकार, क्या अभी भी ये सेम टाइम पे रुकेगा क्या? नो सर। तो जल्दी रुकेगा ना। हाँ, जल्दी। No, sir. दीपक Time थोड़ा ध्यान लगेगा से ज्यादा, सोच। sir. स्ट्रिंग बड़ा है यहाँ पे, Time ज्यादा लगेगा, sir. टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा एटलीस्ट 1 आवर का चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ काफी ज्यादा बड़ा है। यस और नो? Yes, sir. बट इनर्शिया तो दोनों जगह सेम था ना। दोनों जगह जो मास था वो क्या था? सेम था। बट लेंथ की वजह से इनके टाइम में चेंजेस हो गया। यस और नो? Yes, sir. अब गाइज अगर मैं सेंटर से लेके पार्टिकल के पोजीशन तक के डिस्टेंस को आर, आवाज आ रही है गाइज? Yes, sir. यस सर। अब गाइज अगर मैं सेंटर से लेके पार्टिकल के पोजीशन तक का डिस्टेंस को आर मेजर करता, मतलब रेडियस, रेडियस इज कांस्टेंट, तो यहां पर भी तो ये आर ही रहता। यस और नो? Yes, sir. ये दोनों जगह ये आर ही रहेगा रेडियस। तो क्या स्पेसिफिकेशन मिल पाएगा क्या हम लोगों को No, sir. कि भाई लेंथ का क्या इम्पैक्ट है पेंडुलम पे? ये स्पेसिफिकेशन तो हम लोगों को कभी मिल ही नहीं पाएगा। और रीजन है ना, अगर लेंथ को कम ज्यादा किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ता है। इनर्शिया पे फर्क पड़ता है। यस और नो गाइस? Yes, sir. तो अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसा कांस्टेंट टर्म चाहिए रेडियस की जगह पे, जो डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर सके। इज दैट क्लियर ऑल? नहीं सर, समझा नहीं क्या बोल रहे हैं सर रिपीट करो ना। ध्यान से सुनना, दिमाग फिर सकता है। रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता था। रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे हमारे डिस्टेंस कम है, कहाँ पे ज्यादा है। ये समझ में आया सबको? यस सर. अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग में सेंटर से लेके पोजीशन तक के डिस्टेंस को r लिख दूं, तो क्या कभी आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाओगे क्या कि लेंथ का इम्पैक्ट इनर्शिया पे क्या पड़ रहा है? नहीं सर. अभिषेक सुना मैंने क्या बोला? यस सर। अगर हम लोग रेडियस लिखते तो कभी पता ही नहीं कर पाते कि भाई लेंथ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इनर्शिया पे, तो उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला भी जनरेट नहीं होता। समझे? तो अब यहाँ पे रेडियस की जगह पे हमें कुछ ऐसा डिस्टेंस चाहिए, कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जो मतलब डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर सके। सुना आप लोगों ने? हमें कुछ ऐसी क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए जिससे डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर सके। सुना सबने? अब डिस्टेंस को स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है?
मोहम्मद सर यहाँ पे क्योंकि हाँ डिस्टेंस की वजह से इनर्शिया पे इफेक्ट आ रहा है सर, इसलिए। डिस्टेंस की वजह से इनर्शिया पे इफेक्ट आ रहा था, इसके लिए हमें कुछ एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिससे हम ये पता कर सके कि भाई डिस्टेंस कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है। अब रेडियस से खाली काम नहीं चलेगा, अब रेडियस की जगह पे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो काम तो रेडियस जैसा करे बट चीजों को स्पेसिफाई भी करे। सुना सबने? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी यस सर, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझी सर। रेडियस की जगह पे हमें कुछ एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए जो डिस्टेंस को स्पेसिफाई करे और बताए कि कहाँ पे डिस्टेंस कम है और ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कैसे पड़ रहा है। समझे? ताकि यस एक सर। ऐसा फॉर्मूला हम लोग ढूंढ सके जहां पे डिस्टेंस कम ज्यादा का पता चल सके। अभिषेक, अभिषेक शुक्ला, यस सर। समझ में आया? यस सर। हमें क्यों ऐसे फॉर्मेट की जरूरत है, हमें स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट की जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे? क्योंकि डिस्टेंस का इम्पैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पड़ रहा है। डिस्टेंस का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात याद रहे सबको, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे जनरेट होने जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। आई रिपीट, रेडियस ऑफ गायरेशन, GYRATION। एक सेकेंड, हाँ सर उसे कैसे डिनोट करते हैं ना? डिवाइड नहीं, डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन को K से डिनोट करते हैं। अंकुश, सर यही बोला था मैं। डिवाइड बोल दिए थे, ध्यान से। ओके, अब गाइज यहाँ पे जो दूसरा नाम है जो स्पेसिफिकेशन का काम करेगा वो रेडियस ऑफ गायरेशन का होता है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। एक एक्सिस है यहाँ पर Z dash। In that case, again we'll took some particles over here. ओके, अब गाइज यहाँ पर हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुन लो। द डिस्टेंस बिटवीन द radius of gyration is defined as the distance between the axis of rotation and a point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. So it should be possesses the same moment of inertia and the distance. अब क्या था ये, इसको जरा एक एक करके मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इसके स्टेटमेंट में ये क्या क्या बोल गया। सबसे पहला, रेडियस ऑफ गायरेशन के 3 इंपॉर्टेंट काम है, ये बात जरा दिमाग में रख लेना। सबसे पहला, रेडियस ऑफ गायरेशन इज मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। समझा आप लोगों ने? एट रेडियस ऑफ गायरेशन इज मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस इन द बॉडी। जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, विच इज मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहला पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा है ये? सबसे पहला मेजरमेंट इसका क्या होता है? इट इज मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मासेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? सुना आप लोगों ने? मोहम्मद, यस सर। क्या है सबसे पहला पॉइंट इसका? रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
masses. किसको सबसे पहले मेजर करता है ये? distribution of masses. Distribution of masses from the axis of rotation. कि axis of rotation से कितने मास डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. Is that clear all? Yes, sir. Yes, sir. After that, second point, if the body, I repeat guys, if the body distributed, either we can say if the masses distributed close to the axis of rotation, if the masses distributed close to the axis of rotation, then the radius of gyration is less. मतलब m से लेकर m1 से लेकर o तक का जो डिस्टेंस है लेस है या ज्यादा है? इट इज द लेस और मोर? सर लेस है. तो ये मेजरमेंट कौन कर रहा था? रेडियस ऑफ गायरेशन. ये इसका सेकंड पॉइंट था, दैट रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज मेजर if the mass which is distributed close to the axis of rotation, then the radius of gyration is less. अगर distribution of mass axis of rotation से नजदीक है, then the radius of gyration is less. तो वहां पे radius of gyration कम होगा. Is that clear all? Yes, ये sir. पॉइंट समझ में आया सबको? अभिषेक? Yes, sir. ओके. अब गाइस सेम जैसा अगर क्लोज है तो वैसे अवे का भी तो होगा. यस और नो? Yes, sir. ज्यादा होगा सर उधर. तो क्या होगा? इसका पॉइंट क्या होना चाहिए? If the distribution of masses away from the axis of rotation, then the radius of gyration is more. Yes or no? Yes, sir. तीन यहाँ पे मेजर पॉइंट जनरेट हो गए. कौन कौन से? सबसे पहला, रेडियस ऑफ गायरेशन का काम क्या होता है? विच इज मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यस और नो? सबसे Yes, पहले sir. मेजर करता है कि कितनी क्वांटिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. दूसरा, अगर वो क्वांटिटी, इफ दैट मास डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोज है, अगर यहाँ पे वही पेंडुलम वाला मैं स्टेप ले लूं, अगर यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मास, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोज है तो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे लेस होगा, राइट? और अगर ये ज्यादा बड़ा हो, समझ रहे हो आप लोग? इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विच इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन लेस था, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? मोर. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर. समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन का एग्जैक्ट काम क्या था? यस और नो ऑल? यस सर. Yes, sir. Okay, so give the heading. एक सेकंड गाइस. हाँ, एक और बात, it is possesses the same moment of inertia and the mass, क्योंकि दोनों पेंडुलम में मास हम लोगों ने सेम लिया था. यस और नो? तो यहाँ पे Yes, इसका sir. फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा? देखो, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? mr². चेंजेस कहाँ पे हुआ? सिर्फ सर, रेडियस की जगह पे, सिर्फ रेडियस की जगह पे. मास सेम है, इनर्शिया भी सेम है. चेंजेस किसकी जगह पे हुआ है? रेडियस. रेडियस जो कांस्टेंट था, अब रेडियस ऑफ गायरेशन ने इसको क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया. यस और नो ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर r की जगह पे क्या लिखेंगे? K². राइट, k². समझ में आ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन का काम क्या था और क्यों यहाँ पर रिप्लेस किया गया, और एक नई क्वांटिटी बनाई गई रेडियस ऑफ गायरेशन की. एंड इफ यू फाइंड आउट द k² फ्रॉम हियर, सो हियर वी गेट द फॉर्मूला m/i. और अगर मैं यहाँ से k फाइंड आउट करूं तो k का फॉर्मूला होगा √m/i. एक सेकंड गाइस, हाँ, इट्स नॉट m/i, इट्स i/m, क्योंकि i को हम लोग दूसरे साइड भेज रहे हैं ना, m को. i/m. सो हियर वी हैविंग आवर फॉर्मूला √i/m. समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला किस तरीके से मिला हुआ है? यस और नो एवरीवन? अभिषेक? Yes, sir. ओके, गिव द फर्स्ट हेडिंग रेडियस ऑफ गायरेशन. इसके पॉइंट देता हूं मैं, विल गो पॉइंट टू पॉइंट अगेन. ओके, डोंट बी कंफ्यूज इन दैट.
रेडियस ऑफ गायरेशन का हेडिंग दिया सबने? Yes. Okay, write down. Radius of gyration of a body. Radius of gyration of a body about its given axis. About its given axis is defined as the is defined as the is defined as the वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. अबाउट इट गिवन एक्सिस. मेरा नेटवर्क फुल है अभिषेक, चेक करो. सर सबको नहीं ब्लर हो ठीक. रही है क्या? नो सर नो. I repeat, radius of gyration of a body about its given axis is defined as the, लिखा है यहाँ तक, is Yes. defined Sir. as the distance between the axis of rotation, distance between the axis of rotation, distance between the axis of rotation and a point and a point and a point at which the and a point at which the whole mass of the body at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Is supposed to be concentrated. I repeat that statement, everyone. Radius of gyration of a body about its given axis is defined as the distance between the axis of rotation and a point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. लिखें यहाँ तक. Yes, sir. So as to possesses so as to possesses so as to possesses the same moment of inertia, the same moment of inertia, the same moment of inertia as that of body, as that of body about the same axis, about the same axis, about the same axis. याद रखना यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था, खाली डिस्टेंस में स्पेसिफिकेशन हुआ है. इज दैट क्लियर ऑल? एक्सिस और Yes. मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर सेम थे, खाली यहाँ पे डिस्टेंस में स्पेसिफिकेशन हुआ है. इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. ओके. अब गाइस यहाँ पर ये डायग्राम बना के फॉर्मूला लिख लो, फिर इनके मैं 3 पॉइंट देता हूँ जहां पे ये स्पेसिफाई किए हुए हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली कहाँ पे वर्क कर रहा है. ओके. ओके सर. डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिख लो.
Done, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब guys next note point में लिखो physical significance of radius of gyration. Physical significance of radius of gyration. लिखा सबने? Physical significance of radius of gyration. Right on first point, radius of gyration. Radius of gyration. First point, radius of gyration is a measure of distribution of mass about the given axis of rotation. I repeat, radius of gyration is a measure of distribution of mass about the given axis of rotation. Is that clear all? Yes, sir. Yes, About sir. के बाद क्या था? About the given axis of rotation. About the given axis of rotation. Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. लिखे सबने? Yes. Okay. Second point लिखो. Second point, if the particle of the body, if the particles of the body are distributed, if the particles of the body are distributed close to the axis of rotation, distributed close to the axis of rotation, close to the axis of rotation, then the radius of gyration is what? Less. Yes. Then the radius of gyration is less. समझ में आया क्या पॉइंट है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट क्या होगा? If particles of the body are distributed away farther from the axis of rotation, then the radius of gyration is more. राइट. Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ क्या स्टेटमेंट था. if the particle are distributed away from the axis of rotation, then the radius of gyration is more. सुना सबने? Then Yes, the sir. radius of gyration is more. लिखे सबने? Yes, अब sir. गाइस एक बार रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ लो एंड लेट मी नो कि क्या डाउट्स हैं. और याद रखना जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा k इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन m. इज दैट क्लियर? समझे? Yes, sir. ओके एक बार रीड कर लो, देख लो, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लो. सर एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट करो. थर्ड पॉइंट रिपीट करूं? क्या होना चाहिए थर्ड पॉइंट?
लेट मी नो। सेकंड पॉइंट क्या था बताओ पहले, सेकंड पॉइंट क्या था? If the particle of the body distributed are close to axis of rotation, then radius of gyration is less. सेकंड में, थर्ड में क्या होना चाहिए? सेम होगा। अगर वहां पे क्लोज था तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अवे। वहां पे लेस था, यहाँ पे क्या लिखोगे? मोर। इशिका, Okay, sir. समझा। हाँ लिख लो, लिख लो। हाँ, sir. अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन किन किन पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है? इनके डिपेंडेंस पॉइंट बताओ। इनके Distance. डिपेंडेंस, हाँ डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस का Yes. मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेकंड क्या होगा? लिख लो, लिखो, मैं बोलता हूं, लिख लो। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंडेंस अपॉन, लिखो नेक्स्ट नोट में, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंडेंस अपॉन लिखे रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंडेंस अपॉन, लिखे सबने? सबसे पहला पॉइंट, Yes, sir. सबसे पहला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेकेंड लिखा सब लोगों ने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। यस और नो? Yes, Yes. sir. सेकेंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। positions of axis of rotation। लिखे? positions of axis of rotation लिखा सबने? and third shape and size of the body। third shape and size of the body। याद रखना, अगर हमें बॉडी का शेप और साइज के बारे में नहीं पता है तो भी रेडियस ऑफ गायरेशन की वजह से हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता चल जाती है। याद रखना, अगर हमें बॉडी का शेप और साइज के बारे में नहीं पता है तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए विल यूज रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि ये डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर देता है, मास का पता कर लेता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. समझ में आया सबको? रेडियस ऑफ गायरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. ओके, क्लियर है? इज देयर एनी डाउट एनीवन? सर पोजीशन ऑफ एक्सिस में कैसे इफेक्ट पड़ेगा गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन पर सर? देखो वहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो जो उनके एक्सिस ऑफ रोटेशंस हैं, ये जो एक्सिस हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर पोजीशंस पे ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज अ Yes, sir. पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्राची,
शेप और साइज, यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखो मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया था, याद है? ये डायग्राम इस तरीके से क्यों बना है? क्योंकि इस जगह पे रेडियस ऑफ गायरेशन लेस है, इस जगह पे रेडियस ऑफ गायरेशन मोर है। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें किसी भी बॉडी का शेप और साइज नहीं भी पता है तो भी हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन से उसके शेप और साइज का पता कर सकते हैं। और इसी रेडियस, अगर खाली रेडियस होता तो पूरा सर्कल ही बना देते ना, रेडियस तो कांस्टेंट होता है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन कम और ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो शेप है मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। समझे? Yes, sir. ये पता साइंटिस्टों ने ही किया था कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन की वजह से ही हमें पता चला कि ये शेप इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, सर्कल में नहीं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एनीथिंग एल्स? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। जब भी टॉर्क किसी भी बॉडी में एप्लीकेबल होता है तो उसमें कौन से फॉर्मूलाज वर्क करते हैं उस पर डिपेंडेंट ये डेफिनेशन है। राइट डाउन डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स acting on the rotating body, moment of tangential force acting on the rotating body about the axis of rotation. I repeat, moment of tangential force acting on the rotating body about the axis of rotation, about the axis of rotation is called what? Is called what, Torque. everyone? Torque. Torque acting on a rotating body. पूरा बोला करो। Its formula is torque is equal to I alpha. पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में। मैंने आपको थियोरेटिकली बताया है कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। यस और नो? Yes, sir. लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और गाइस कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपके टेक्स्ट बुक में इधर उधर काफी सारी चीजें कर दी गई है, मैं थोड़ा सीक्वेंस में आप लोगों को दे रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? सुना सबने? टेक्स्ट बुक Yes, में sir. कुछ पॉइंट्स इधर उधर हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आप लोगों को सीक्वेंस में दे रहा हूं, ओके? ताकि आप लोगों को लिंक पता रहे। ओके, अब गाइस ये जो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है ना, इसको प्रूव करना है हम लोगों को नेक्स्ट डेरिवेशन में। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वी नीड टू प्रूव दैट इक्वेशन। सुना सबने? Yes, sir. सो राइट डाउन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही लिख लो, प्रूव द रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। प्रूव द रिलेशन, प्रूव द रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लिखे? Yes. और लिख के दूसरा क्वेश्चन लिखो, obtain an expression for the, obtain an expression for the torque acting on a rotating body, obtain an expression for the torque acting on a rotating body
torque acting on a rotating body with constant angular acceleration. With constant angular acceleration. सुना आप लोगों ने? With constant angular acceleration. Clear, guys? लिखे या नहीं? Yes. और लिख के तीसरा क्वेश्चन लिखो, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन से कंफ्यूज करते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. ओके? और लिख के थर्ड क्वेश्चन लिखो, obtain relation between obtain relation between torque and angular acceleration. Torque and angular acceleration of a rotating body. Of a rotating body. Of a rotating body. Is that clear all? समझ में आया सबको? Yes or no? Yes, sir. डायग्राम याद है? Yes, sir. सेम वही फॉर्मेट होगा डेरिवेशन का जैसा आप लोगों ने पहले लिखा था, खाली इक्वेशंस यहाँ पे डिफरेंट होंगे. ओके, सेम पॉइंट्स होंगे यहाँ पे. m1 v1 r1 m2 v2 r2 m3 r3 v3 और यहाँ पे rn mn एंड vn. बॉडी रोटेट हो रही है एक्सिस पे एंड हियर वी हैविंग द एंगुलर एक्सेलरेशन. ये डायग्राम याद है? आप लोगों ने प्रीवियसली बनाया हुआ है. Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस यहाँ पे पहले इसका स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनना ना. सेम स्टेटमेंट है. कंसीडर अ रिजिड बॉडी rotating with the constant angular acceleration alpha about an axis z dash passing through the center O as shown in the figure. पहला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या चेंजेस करना है? Yes, sir. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. इज दैट क्लियर? आई रिपीट, consider a rigid body rotating with the constant angular acceleration alpha about an axis z dash passing through the point O as shown in the figure. सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लिखोगे let the n particles of masses m1 m2 m3 dot dot mn situated at the distance r1 r2 r3 dot dot rn respectively from the axis of rotation as like the previous derivation. Second point will remain the same. Next, let f1 f2 f3 dot dot fn be the tangential force acting on a particles of masses. I repeat, let f1 f2 f3 dot dot fn be the tangential force acting on a particles of masses. Is that clear all? यहाँ पे 3 पॉइंट है, मैं तीनों पॉइंट वापस बोल रहा हूँ. कंसिडर अ रिजिड बॉडी rotating with the constant angular acceleration alpha about an axis z dash
passing through point O as shown in the figure. Second point, let the particles consist n numbers of masses m1, m2, m3 dot dot mn situated at the distance r1, r2, r3 dot dot rn respectively from the axis of rotation. नेक्स्ट में लिखोगे लेट f1, f2, f3 डॉट डॉट fn be the tangential force acting on a particles of masses. तो गाइज अब यहाँ पे चेंजेस क्या था, क्योंकि मैंने f1, f2, f3 लिखा है, तो ये जो प्रीवियस वाला डायग्राम था यहाँ पे एक और चेंजेस होगा. ये जो यहाँ पर आप लोगों ने v1, v2, v3, vn लिखा था, जब हम लोग टॉर्क को फाइंड आउट करोगे तो इस जगह पे विल राइट f1, f1, f2, f3 and fn. These all are representing the tangential force on a particles of masses. Is that clear all? समझ में आया चेंजेस क्या हुआ है यहाँ पे? Yes, sir. कोई एक्सप्लेन कर सकता है इन चेंजेस को? कीजिए. सर पहले Explain कीजिए. पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी की जगह कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा. और सर डायग्राम में जहाँ पर हम लोगों ने v1, v2, v3 डॉट डॉट pn लिखा था, वहाँ पर हम लोग टेंजेंशियल फोर्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा राइट. f1, f2, f3, fn. वेरी नाइस, वेरी नाइस. डायग्राम ड्रॉ कर लो सब लोग. ड्रॉ दैट डायग्राम. Done everyone? Yes, sir. डायग्राम समझ में आया सबको? Yes, sir. लेट मी नो Yes, इफ यू हैव sir. एनी डाउट. तो कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ गाइस, इसको इस डेरिवेशन को हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व कर देंगे. आप पॉइंट्स अभी यहाँ पे लिख लो.